Today I will teach you prose. There are seven chapters, seven lessons prescribed in your prose textbook. The first lesson is a girl with a basket. This lesson is written by William C. Douglas. William C. Douglas was the judge of the Supreme Court of America. He visited India in 1950. By that time, the country had got independence. But unfortunately, the country was divided into two parts, India and Pakistan. The partition of India had a far reaching repercussions. A large number of people left Pakistan and came to settle in India. And a large number of people left India and went to settle in Pakistan. The people who left एक Pakistan जी and came to settle in India were called refugees because they had left their country knowing not where to stay. In this lesson, the author William C. Douglas had described the miserable condition of these refugees who came to India from Pakistan. The writer was traveling by train from Delhi to Bareilly on his way to Ranikhet. He used to get down at all the way stations and talk to English speaking people. At one of the way stations, he was surrounded by a group of refugee children selling baskets. The writer bought a few baskets. Even then, the children pressed him to buy more. Among those refugee children, there was a 9-year-old girl. She had a lovely basket with a long handle. She wanted to sell it. There were tears in her eyes. She begged in a tone that would melt even in human heart. The writers had already bought many baskets, his arms were full, and there was no need for another basket. But he was very much impressed by the pleading of the girl and wanted to help her. So he raised some money from his pocket and gave it to the girl without buying her basket. He wanted to tell to the girl that he did not want to buy his basket, but he extended the money as a help, as a token of help. But the girl felt it as her insult. She did not want to get money in charity. Therefore, she returned the money to the author. The writer was forced to buy her basket. He praises the girl highly for her sense of self-respect and dignity. Now I am starting this. I had left New Delhi for the Himalayas. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. Writer कह I had left New Delhi for the Himalayas. Writer कह रहा मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल गया था. राइटर जो था नई दिल्ली से हिमालय पहाड़ के लिए पर्वत की ओर चल गया था. आई वॉज गोइंग एज फार बाय ट्रेन. वो दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से जा रहा था और तब उसे कार से रानीखेत जाना था. रानीखेत क्या है? ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, अंग्रेजी आर्मी सेना का हिल स्टेशन, अंग्रेज सेना का की छावनी है, पहाड़ी छावनी है. लोकेटेड आने जो स्थित रिपोर्टेड नहीं सिचुएटेड स्थित है 6,000 फीट रिज मीन पर्वत श्रृंखला जो 6,000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है 120 मील ईस्टर्न में फैले हुए स्नो कैप बर्फ ढके 120 मील तक फैले हुए बर्फ ढके हिमालय जो है ये उनके विपरीत साइड में स्थित है. राइटर जो था वो नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल गया. दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से जाना था और फिर उसे कार से रानीखेत तक जाना था. रानीखेत क्या है? रानीखेत एक शहर है. रानीखेत में आर्मी का छावनी है, गर्मी की छावनी है. और ये रानीखेत जो है वो हिमालय पर्वत जो है 120 मील तक फैला हुआ हिमालय पर्वत जो है उसके विपरीत दिशा में 6,000 ऊंची पहाड़ी पर ये शहर स्थित है रानीखेत. द ट्रेन वाज स्लो. ट्रेन कैसी थी? धीमे चल रही थी. एंड स्टॉप ऑन द वे स्टेशन और ये रास्ते के हर स्टेशनों पर. एट एवरी स्टॉप आई सो ओपन में
खोल दे, बाहर तरफ खोल देता था। द डोर ऑफ कंपार्टमेंट, हर स्टीम राइटर जो था अपने दरवाजे के, अपने उसके कंपार्टमेंट के, डिब्बे के दरवाजे खोलता था एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म क्या करता चलता। राइटर कहाँ जा रहा था कि क्वेश्चन आए तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका, आप क्या करेंगे, वेयर वाज द राइटर गोइंग, क्या आंसर है, द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू वाराणसी। दिल्ली से बरेली तक कार से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, और फिर उसके बाद कार से। हम पर पैक्ड विद पीपल, और पैक्ड मींस भरे हुए थे। You know, a railway station is a place of hectic public activity. You will find there a large number. You will always find there a crowd. रेलवे स्टेशन जो है भीड़ भाड़ की जगह होती है, हमेशा भीड़ रहती है। तो इसलिए राइटर ने देखा प्लेटफॉर्म पर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे, पैक्ड में भरे हुए थे। और देयर वर डिफरेंट टाइप होता है, हर तरह के लोग थे वहाँ पर, सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर थे, मर्चेंट व्यापारी थे, प्रिस्ट पुजारी थे, पुरोहित थे, पोर्टर्स कुली थे, बेकर भिखारी थे, हाकर फांचे थे, फेरी में समझ थे, हर तरह के लोग। ऑलमोस्ट में लगभग एक बार बेयर फुट में विदाउट शूज, और करीब हर आदमी ऑलमोस्ट में लगभग हर आदमी तो नंगे पैर था, एंडर में पहने होता लूज में ढीले, और वो ढीले सफेद कपड़े पहने होता। आई वुड आस्क एटलीस्ट कम से कम 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। राइटर ने कम से कम 3 लोगों से पूछा, उसके बाद में उसे एक ऐसा आदमी मिला जो अंग्रेजी में बात कर सकता। The writer was an Englishman. He was American. He was in search of someone with whom he might have conversation in English. He asked at least 3 people. After that, he was able to find one who could speak English. राइटर जो था अंग्रेज था, वो किसी ऐसे आदमी की तलाश में था जो अंग्रेजी बोल सके, जिससे वो बातचीत कर सके। उसने कम से कम 3 लोगों से पूछा, उसके बाद उसे एक ऐसा आदमी मिला जिसमें अंग्रेजी में बात कर सकता था। और उसने उससे बात करी, वो कोई टॉक वर्ल्ड अफेयर्स में दुनिया के अफेयर में मैटर। उसने उस आदमी से, अंग्रेजी बोलने वाले आदमी से, राइटर ने, जो दुनिया में मामले चल रहे थे, न्यूज चल रही थी, उनको पर बात करी। एवर मेजर टॉपिक में विषय आप बनी, और उस विषय पर बात करी जो दुनिया बाद में छपा। यानी उसने ही टॉक टू द इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑन द करंट टॉपिक्स, जो करंट टॉपिक चल रहे थे, जो बहुत अखबारों में मैटर आ रहे थे, उस मैटर पर उसने बातचीत करी। In this way, I was trying to get a feel of the pulse को, किसी के मन की बात को जानना। नेशन, इस तरह वो राष्ट्र की या भारत के लोगों की मन की बात जानना चाहता था, ताकि वो चेक करके ओपिनियन में राय अगेंस्ट ऑफिशियल एटोनमिक दृष्टिकोण आउटलुक, ताकि यानी वो भारत के लोगों से बातचीत करके वो उनके दृष्टिकोण को जानना चाहता था कि विभिन्न विषयों पर उनका क्या दृष्टिकोण है, ताकि सरकारी राय और जो उसने दृष्टिकोण अखबारों वगैरह में, रिपोर्ट वगैरह में पढ़ा था, उसको चेक कर सके सही है या नहीं है। अभी क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्हाट डू द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लोगों की मन की भावना जानने को राइटर ने क्या करा, इसका आंसर होगा टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, द राइटर गॉट डाउन एट ऑल द वे स्टेशन एंड टॉक टू द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट इंडिया एग्रीकल्चर एरिया। ये कह रहा है दिल्ली से बरेली वो ट्रेन से जा रहा था। ये रूट भी एरिया, दिल्ली से बरेली का एरिया ऐसा है जो रिच एग्रीकल्चर एरिया, जो कृषि के दृष्टि से बहुत धनी एरिया है, कृषि की दृष्टि से बहुत धनी एरिया है। जिस बात प्लेन ऑफ अपर, ये अपर गंगा, ये गंगा नदी का ऊपरी मैदानी हिस्सा है। 1000 फीट एबव, जो समुद्र की तह से करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर है। टिपिकल लेकिन भूमध्यसागरीय है, ये गर्म जल नहीं है, भूमध्यसागरीय। द गंगा वाज ब्राउन सेट, उधर गंगा का पानी जो था भूरा मटीला था, सेट में मटीला था। सोल में फूल गया और उसमें बाढ़ का पानी आ गया, गंगा में बाढ़ का पानी आ गया, जिस वजह से गंगा का पानी जो था वो गंगा फूल गई, पानी उसको मटीला हो गया। ओवरफ्लो में बाहर बहना, इंडाइटिव में भर जाना, 1000 एकड़ ऑफ राइस, और गंगा अपने किनारों से बाहर बहने लगी थी, और हजारों एकड़ धान के खेत में इसका पानी भर गया। टू द नॉर्थ वर जंगल, उसमें देखिए उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैंस, और वहाँ पर घास जो थी जंगलों में, इतनी ऊंची घास थी, आदमी के सबसे ऊंची घास, जो सबसे ऊंची, इंसान के सबसे ऊंची घास थी। एंड अनब्रोकन काइंड, और लगातार चली गई, ऐसा नहीं छोड़कर। क्वेश्चन मीन्स कहीं का पर, किलम मीन्स समूह, और ये घास लगातार चली गई थी, सिर्फ उन जगहों को छोड़कर जहाँ पर पेड़ों के झुंड थे। उसने घास देखी, और वहाँ पर तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे। होम ऑफ टाइगर, चीता थे, एलिफेंट, हाथी थे, अजगर थे, और कोबरा नाग, हर तरह के सांप थे। एरिया देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग, और उसने और जहाँ पे देखी जमीन ऐसा लगा क्षितिज, क्षितिज होरिजन कहते हैं, जहाँ पर जमीन और आसमान बिल्कुल मालूम होते हैं।
और दूसरी जगह पर उसने देखा कि जमीन और आसमान मिलते हुए मालूम, डार्टेड हियर एंड देयर वर्क, और देखिए इधर उधर सेक्रेट में पवित्र, इधर उधर सेक्रेट पवित्र बेनियन में बरगद के पेड़ थे या पाकड़ के पेड़, वो पता नहीं। हार्ड ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, दक्षिण पश्चिम की तरफ से गर्म और नम हवा चल रही, कैसी हवा चल रही थी, गर्म और नम हवा चल रही थी। मंकी सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज किलिंग चिपटे, उसने कुछ बंदर देखे और कुछ बदनिया देखी, कुछ बच्चे देखे बंदर के जो अपनी माँ को चिपटे हुए थे। एंड राइडिंग अंडर, राइड मीन कूदना उछलना कूदना जरूर चलना, सोइंग ऑफ टीज पेड़, और वो उछल कूद रहे थे पेड़ों, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहे थे, लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश। The village we passed had walls made of mud mixed with water and cow dung. जिन गांवों के पास से गुजरा तो देखा उन गांवों की दीवारें जो थी वो मट्टी और गाँव डंग गोबर, मट्टी और गोबर से मिला करके उनकी दीवारें थी, ये कच्चे मकान, उनकी दीवारें जिन गांवों के पास से गुजरा तो देखा कि गांवों के मकानों की दीवारें जो थी वो मट्टी और गोबर की बनी। देयर पीक में नुकीली रूप में छतें, उनको नुकीली छतें जो थी थे में छप्पर, उन पर छप्पर पड़े थे, छतों क्या पड़ा, छप्पर पड़े। छप्पर कहते हैं बंडल ऑफ ग्रास टाइट टू द बैंक, बांस पोल्स, उसमें देखा कि बांस के जो थे पोल जो थे उनमें उन्होंने घास वगैरह को बांध दिया था, और उनको एक रेफ्टर मीन्स धन्नी, और धन्नी पे उसको फैला दिया, धन्नी आती, धन्नी को बंडल डाल करके बांस वगैरह लगा के छप्पर बन दिया था। डेड ए पंपकिन कद्दू, वाइन मीन्स क्रीपर, बेल ग्रू ओवर देम वन इन ब्लूम, और उनके ऊपर कद्दू की बेल पड़ी हुई थी और वो बेल खिल में फूल खिल रहे थे। कद्दू के में फूल कैसे होते हैं, कद्दू के बेल में पीले, तो इसलिए ट्रेनिंग में लटके होते, स्टिक में लाइन है, येलो ड्रेप, इसलिए भूरी भूरी दीवारों के ऊपर पीले पीले फूलों की लाइनें लटकी। ये तो रास्ते में सब देखा होता है। आपको मालूम है कि वो हर स्टेशन के ऊपर उतर जाता था और लोगों से बोलने वाले लोगों से, जहाँ ट्रेन रुकी स्टेशन पर छोटे छोटे स्टीमर रुकती थी, वो उतर जाता था, धीरे बोलने वाले लोगों से बातचीत कर। लेकिन एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल इंटरप्टेड, रूटीन में कारकिरा, टॉकिंग में बात करना, लोगों इंटरप्टेड बाधित, लेखक कह रहे एक स्टेशन के ऊपर लोगों से बातचीत करने का मेरा कार्यक्रम जो था वो बाधित हो गया। एट वन ऑफ द स्टेशन द राइटर कुड नॉट कंटिन्यू हिज रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द इंग्लिश, क्योंकि हर स्टेशन पर राइटर बोलने वालों को बातचीत करता, लेकिन स्टेशन पर ये कार्यक्रम जो था वो बाधित हो गया। क्यों बाधित हो गया? ऐसे मैं राइटर उतरना, राइटर कह रहे जैसे ही मैं एक ट्रेन से उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर, मेरे पास नौजवान बच्चों, छोटे बच्चों का एक समूह जमा हो गया। जैसे ही राइटर ट्रेन से उतरा, यानी एक स्ट्रीम पर राइटर बात नहीं कर सका, क्योंकि जैसे वो ट्रेन से उतरा ही वाज सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, उसे बच्चों के समूह ने घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, ये बच्चे क्या कर रहे थे, टोकरियां बेच रहे थे, बास्केट। उसको किसने घेर लिया? राइटर के स्टेशन के ऊपर टोकरियों बेचने वाले बच्चों ने घेर लिया। हैंड वूमेन हाथ की बनी हुई, रीड कहते हैं बेत की बनी हुई बास्केट, जो सारे डिजाइन नमूने की। दे हेल्ड द बास्केट हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो, लेटर कह रहे हैं कि बच्चे जो बास्केट हैंड में पकड़े हुए, बास्केट को ऊंचे में पकड़े हुए थे, और ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द कह रहे थे जिसको मैं समझ नहीं, राइटर रेस्ट था, कह रहे हैं मैं समझ नहीं पाता वो क्या कह रहे हैं, कभी पहुंचाने बिना किसी गलती, लेकिन बिना किसी गलती की उन बच्चों इच्छा मुझ तक, मैं समझ रहा था कि बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। राइटर कह रहे हालांकि बच्चों की भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं बात को समझ। देवर रिफ्यूज चलते, ये शरारती बच्चे, रिफ्यूज कहते शरारती, शरारती किसे कहते हैं? मान लो कोई दंगा हो, झगड़ा हो, वहां से भाग करके देश से दूसरे देश में आदमी चला गया शरण लेने की, वो कहता है शरारती, तो ये शरारती बच्चे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में डिग्री में आदेश हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का आदेश हुआ, तो क्या उसका नतीजा निकला? 100,000 ऑफ पीपल, सैकड़ों हजारों सैकड़ों लोगों ने पुल्ड अप देयर रूट्स, अपनी जड़ें बदल दी, यानी कि दे चेंज देयर स्टेटमेंट हो, अपने माँ बाप के निवास स्थान बदल दिए, जहाँ जड़ें थी, जहाँ खानदानी रह रहा था उसको जड़ें बदल दी, और अपने निवास स्थान बदल दिए। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हो तो हजारों सैकड़ों लोगों ने अपने पैतृक निवास स्थान बदल दिया। 9 मिलियन, एक दिन होता है 9 लाख का, 9 मिलियन 90 लाख, 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious में धार्मिक फैनेटिज्म में कटता है। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया, यानी 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। किस वजह से आ गए? धार्मिक कट्टरता के डर से। इस डर से कि दूसरे धर्म के लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाए, धार्मिक कट्टरता के डर से भारत आ गए 90 लाख लोग। दे वर पुअर पीपल, जब लोग चले हैं तभी गरीब थे। दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रेक में यात्रा, जब इन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू करी, जर्नी शुरू करी,
तो ये और ज़्यादा खतरनाक है। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ ब्रेड में थोड़ा सा, ये सिर्फ अपने साथ ये सामान लेके कुछ नहीं चले जब भागे, वो थोड़ा सा अपने साथ खाना ले आए, बिलांग और दो कुछ और चीज़ें ले आए। सून दे वर आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड समाप्त हो गया, जल्दी उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड they began to fall by the wayside from the weakness कमजोरी of hunger and died where they fell। जब ये चले हैं, ये भारत आए, चलने के कुछ ही दिनों बाद ये सड़क के किनारे कमजोरी से, भूख की कमजोरी से गिरने लगे, और जहां गिरे वहीं पर ये मर गए। The children selling basket were son and daughter of these refugees। ये बच्चे जो टोकरियां बेच रहे, ये उन शरारतियों के लड़के या लड़कियां, उनके बच्चे। They are their parents are relative had gathered in the city, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in the market until overcrowded। ये बच्चे अपने माता पिता के साथ, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों के साथ गेदर में जमा हो जाना। ये बच्चे अपने रिश्तेदारों या माता पिता के साथ बड़े बड़े शहरों में आकर के, भारत के बड़े बड़े शहरों में आकर के जमा हो गए, गेदर में जमा हो गए, सेटिंग में स्थापित कर लिया। और अपने स्टॉल करें, टेम्परेरी दुकान, वैसे टेम्परेरी दुकान लगा दी, उन्होंने स्टॉल लगा लिए थे, मैन्युफैक्चरिंग बनाने लगे और छोटी छोटी आर्टिकल में चीज़ें और सारी चीज़ें बनाने लगे थे, छोटी मोटी चीज़ें बनाने लगे। टाइम टू मेक ए लिविंग में रोजी जीविका इन द मार्केट ऑलमोस्ट ओवर का भीड़ भरी, और एक ऐसी बाजार में रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे जो बाजार पहले से बहुत भीड़ भाड़ से बनी। दे लिव इन क्लार्क एंड ग्रॉस शेड डेडलाइन, और उन्होंने स्ट्रीट में और उन्होंने सड़क के किनारे अपनी झोपड़ियां बना दी। कैसे बना दी? कपड़े या घास की झोपड़ियां बना दी, सड़क किनारे उनकी लाइन चली गई। द पीजन में ग्रामीण किसान बना रहा, एमंग धीरे धीरे हैड बीन ए कस्टम आदि हो गया, हैबिचुअल लिटिल ऑल देयर लाइफ। इनमें किसान जो थे, ग्रामीण लोग जो थे, वो कम खाने की, जिंदगी भर उनकी कम खाने की आदत, क्यों आदत पड़ गई थी? फॉर द एनुअल जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि किसी भी कृषक परिवार की सालाना आमदनी जो है औसत इसमें अधिक $100 साल का $100 से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उनकी इतनी कम इनकम, इसलिए कम खाने की आदत पड़ गई। एवरेज अर्निंग्स के अकुशल मजदूर जो है उसे 30 सेंट मिलते हैं या $2 हफ्ते में। देयर इज 1 मील ए डे, इसलिए दिन में एक ही बार खाना खाते थे। वो खाना बहुत सादा होता है, क्या होता है? ओनियन, प्याज ले ली, एक पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा ले लिया, एक बाउल ऑफ पल्स, बाउल में कटोरा, पल्स में दाल, और एक कटोरे में दाल ले ली दूध के साथ, ये इनका खाना होता है, बहुत इसमें परहेज से। और शायद थोड़ा सा बकरी की चीज भी, पनीर ले लिया। नो टी, न इनको चाय मिलती थी, न इनके पास काफ़ी थी, न बसा था, नो स्वीट, न मिठाई, न मीट, कुछ नहीं। $100 ईयर इज नॉट $2 वीक, साल में $100 पैदा करते थे। इसको आप कैलकुलेट करें, इसकी गणना करें तो हफ्ते में $2 भी नहीं। और ये तब कब कमाते थे? जब ये पाकिस्तान में अपने घर पर रहते थे। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy। लेकिन ये छोटी रकम कमाना भी अब इनके लिए यहाँ पर नामुमकिन है, असंभव है, कठिन है, खास तौर से उन लोगों के हर टोकरियां बेचकर जो लोग इतने गरीब हैं कि उसको खरीद नहीं सकते। That no doubt is the reason these children डिसनी उतर आना, चढ़ जाना। आदमी लाइक लोकल टिड्डा कहता, राइटर कह रही है, जिस तरह टिड्डा किसी चीज के चिपक जाता है, इस तरह से बच्चे मेरी चारों तरफ चिपक गए। बच्चों ने चारों तरफ से मुझे घेर दिया, यानी विलियम से डॉगलस को बच्चों ने चारों तरफ से क्या करा? घेर लिया, टिड्डे की तरह घेर लिया। उन्होंने सोचा आई अमेरिकन वार डॉलर में निसंदेह मोर प्राइमरी हुनर मार्केट। उन्होंने सोचा कि विलियम से डॉगलस वो एक अमेरिका नहीं, ये बहुत बड़े आदमी हैं और उन्हें सबसे अच्छे घाट मिले, इसलिए बच्चों ने को घेर लिया। बच्चों ने विलियम से डॉगलस को घेर लिया, तो वो सोचा कि विलियम से डॉगलस बड़े आदमी हैं, अमेरिका ने मालदार आदमी और हमारी सबको क्या खरीद लेंगे, इसलिए कोई बहुत अच्छे ग्राहक, इसलिए बच्चों ने घेर लिया। The children descended like locusts on William Douglas because they thought that he was the best market they had. I bought one tiny basket। और राइटर क्या करा? टाइनी में बहुत छोटी सा बास्केट, फिर वो अनाज। राइटर ने एक आने की एक छोटी सी टोकरी खरीदी। Another fruit basket फॉर ए बिट में थोड़े ज्यादा, एक दूसरी फ्रूट रखने की बास्केट खरीदी, कुछ ज्यादा पैसे की। एक ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर, रद्दी कागज, और ₹1 की रद्दी कागज रखने की टोकरी खरीदी। ए लवली स्विंग में सिलाई, एक सुंदर सिलाई का सामान रखने के बाद ₹1 की। ए टू फैन फॉर एन आना आर्ट टू ए पीस, और कुछ पंखे 1 या 2 आने के हिसाब से खरीदे। ये सामान राइटर ने बच्चों से खरीदा। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट। राइटर कह रहा मेरी बाह भर गई थी और मैंने भी 50 पैसे भी नहीं खर्चे।
The children paused and shouting their way. कह रहे बच्चे मेरे सामने गुजरे, शॉर्ट में चिल्लाता हुआ गया नहीं सामान और अपने सामान को लेकर के नीचे गया। I was prisoner completely surrounded, unable to breathe. मैं कैदी, सॉर्डन में घिरा हुआ था। राइटर का मेरी स्थिति ये कैदी की तरह थी, मैं कैदी की तरह था जो बिल्कुल हिल नहीं सकता। The most diligent means मेहनती, अग्रेसिव में प्रभावशाली, विंटर में विक्रेता। What a beautiful girl of 9 writing for राइटर कह रहा वो विक्रेता जो सबसे ज्यादा मेहनती थी, सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी, जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करा है, वो एक 9 साल की लड़की। यानी सब विक्रेता थे, लेकिन जिस विक्रेता ने लेखक को सबसे ज्यादा प्रभावित करा वो एक 9 साल की लड़की थी जो उसके सामने खड़ी हुई। She had a lovely basket with a handle, उसके बाद एक सुंदर टोकरी थी जिसमें हत्था लगा होता, हैंडल लगा होता। She wanted और वो से she wanted a रुपया है और उसको 1.5 रुपए या समझ लीजिए 30 सेंट का बेचना चाहता। She was ardently serious, वो एक बहुत ही गंभीर रूप से उसको प्रार्थना कर गंभीर रूप से प्रार्थना करती है। There were tears in her, tears में आंसू, उसकी आंखों में आंसू आ गए। She pleaded and begged in a tone में आवाज में, डैड वो रिंग में निचोड़ नहीं, उसने इस तरह ऐसी आवाज में प्रार्थना करी कि हर आदमी का दिल दहल जाएगा। She requested in a tone that would melt any human heart. My दिल दहल जाएगा। अब राइटर क्या कह रहा है, माई आंख भरपूर, राइटर कह रहा है मेरी बाह भरी हुई। ये राइटर पहले से बहुत बास्केट खरीद चुका था, उसकी बाह भरी हुई थी। मैं रूम में स्थान और दूसरी बास्केट रखने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं, इसलिए उसने क्या करा, लेट होना और कोई जरूरत नहीं दूसरी बास्केट। इसलिए बैलेंसिंग माई बास्केट हैंड ऑन माई लेफ्ट आर्म, उसने अपनी उल्टी बाह के ऊपर बास्केट को और पंखों वगैरह को बैलेंस दिया, लेफ्ट आर्म के ऊपर उसको बैलेंसिंग को रखा, इस तरह से सबको पकड़ा। आई रीड इन, तो उसने कोट की जेब में हाथ डाला एंड गॉड हैंड को चेन में चिकारी और तो उन्होंने मिट्टी पर चिकारी दी जो करीब परहैप्स 15 सेंट, जो शायद 50 सेंट होगी, विच आई डिपॉजिट में रख देना इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इन में प्रार्थना कर। और उसने उस यानी 50 सेंट करीब निकाले, मिट्टी पर चिकारी निकाली और वो लड़की बास्केट जो उसके सामने जो खड़ी थी, जिसको खरीदने की मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, उसने वो पैसे उस बास्केट में रख दिए, यानी बगैर बास्केट खरीदे ही उसको पैसे दिए। I tried to explain that I could not buy the basket, समझाना, लेकिन कह रहे मैंने उसको समझाने की कोशिश करी कि मैं उसकी बास्केट नहीं खरीद सकता हूँ, पर स्टैंड में प्रदान करने ग्रेजुएटी में सहायता, सब्सिट्यूट में स्थान, सब्सिट्यूट कहते किसी की जगह पर। राइटर कह रहे मैंने उसको बताने की कोशिश करी मैं उसकी बास्केट नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन उसकी स्थान पर मदद के तौर पर मैंने उसको ये पैसे दे दिए। लेकिन क्या हुआ, रिएक्शन क्या हुआ लड़की का, देखिए लड़की ने उस पैसे को लेने से इनकार कर दिया। वही बता राइटर कि आई रियलाइज में महसूस करना, व्हाट ऑफेंस, ऑफेंस में गुनाह करना, पाप करना। आई हैड टू, राइटर कह रहा है मैंने फौरन महसूस करा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा गुनाह करा, बहुत बड़ा पाप किया है। द चाइल्ड ऑफ मैन, राइटर कह रहे हैं लड़की 9 साल की है, द चाइल्ड वाज, स्पेशल यहाँ से इंपॉर्टेंट है, द चाइल्ड ऑफ 9, लड़की 9 साल की थी, ड्रेस रैंक में फटे कपड़े पहना, वो फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। रैंक ऑफ स्टार्वेशन इट मींस एंड ऑन एज ऑफ स्टार्वेशन इट मींस पॉइंट ऑफ, किनारे पर स्टार भूखमरी। राइटर कह रहे लड़की जो थी वो 9 साल की थी, वो फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और भूखमरी के किनारे पर। रेज हट चल, लेकिन उसने अपने ठुट्टी उठाई, न मुंह उठाया था। रीड इनटू बास्केट, जेब में हाथ डाला, विद ऑल द प्राइड गर्व, जिसमें शान और और किसी औरत के अंदर जितनी शान और गर्व होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, उसने हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे पैसे वापस कर। राइटर को पैसे क्या करे उसने, लड़की ने वापस कर, यानी उसने फ्री में। द गर्ल हैड अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सो शी डिड नॉट वांट टू टेक मनी इन चैरिटी। लड़की के अंदर आत्मसम्मान भावना थी, इसलिए वो खैरात में, दान में पैसे लेना नहीं चाहती। There was only one thing I could do, I bought the basket. राइटर कह रहे हैं अब मैं एक ही काम कर सकता था कि मैंने उसको टोकरी। इस पर लड़की ने वाइफ में पोछा, लड़की ने अपने आंसू पोछे, स्माइल, मुस्कुराई एंड डायनो चल दी और प्लेटफॉर्म पर चल दी, तेजी से चल दी। हेडेड फॉर सम ग्रास, और वो एक ऐसी घास की टोकरी के लिए चल दी जहां दैट वुड हैव बीन, जहां वो उस दिन 30 सेंट ले गई थी, लड़की चली गई। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू पंडित प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। राइटर कह रहे हैं मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई, जो बहुत भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। आई टोल्ड हिम इट वाज द रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, मैंने उन्हें बताया कि ये वजह है कि मैं भारत के लोगों से पूरा प्यार करता हूं। अब ये लास्ट स्पेशली इंपॉर्टेंट, यहाँ पर राइटर जो है, द राइटर इज प्रेजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ही मेट इन इंडिया। उन लोगों को तारीफ करा है जिन लोगों जिनको उसने भारत में देखा।
द पीपल आई साइन इंडिया, राइटर कह जिन लोगों को मैंने भारत में देखा हो, तो चाहे वो गांव में रहते हो एज या वो बड़े दफ्तरों में काम करते हैं, कोई भी है, उनके अंदर बहुत से गुण हैं जिन गुणों ने मुझे बहुत प्रभावित करा है। वो गुण क्या है? प्राइड, प्राइड उनके अंदर गर्व है, लिवली मीन सजीव, सेंस में भावना, डिसेंसी मीन अच्छे पर, सम्मान, और एक सम्मान की भावना है, आत्मसम्मान की भावना है, उसे और नागरिकता की भावना है। जहाँ वो पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनका स्वतंत्रता के प्रति भी उनके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है। द ब्यूटीफुल चाइल्ड, राइटर कह रही है सुंदर लड़की, बाल स्कूल में गंगी, जो गंगी में जन्म हुआ था, जिसका गंगी और पॉवर्टी गरीबी में जन्म हुआ था, लड़की गरीब थी, वो गंदे माहौल में वो रही थी, अनएजुकेटेड, बहुत ग्रामर है मैंने, और वो अशिक्षित थी, ना उसने ग्रामर सीखी थी, ना मैनर सीखे थे, ढंग सीखे थे। हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, लेकिन उसने मुझे एक झलक दी थी, क्या झलक दी थी? भारत की आत्मा के बारे में, वात्सल्य जो सबके लिए प्यार और सहानुभूति से। अब इसका स्पेशल समझ लीजिए एक बार। द राइटर was very much impressed by the different type of people he met in India. He says that all the people of India, whether they live in villages or work in offices, have some qualities. These qualities are a sense of pride and dignity. They have a sense of self-respect. They have also a strong desire for independence. The writer says that the beautiful girl was born in dirty surroundings and extreme poverty. She had learned neither language nor manners, but she had given him a glimpse of the soul of India, which is full of love and sympathy for her. Okay, tomorrow we will write questions.